Good morning, good afternoon, everyone. And we are back with a new session and a new workshop on data protection impact assessment. I hope you have visited the previous workshop on privacy impact assessment, where we discussed about Article 35 of GDPR, and we discussed that why a privacy impact assessment is required, what is the contextualization, which kind of elements are required to do that, and हम वॉल्यूम बेसिस क्यों करते हैं. सो हमारे डिस्कशंस वर अराउंड हु इज़ अ कंट्रोलर, हु इज़ अ प्रोसेसर, what is large volume of data processing, why this assessment is required, what is privacy impact, why we are doing this, to understand whether these privacy elements where the controls are not working fine or we have weaker controls, how we can remediate or mitigate the risk coming from those privacy impacts under an assessment. In the same presentation, we also discussed about a tool which was generated using generative AI, Gemini Canvas, and we created a big questionnaire, which kind of project process that is, which kind of criticality that is, and that will actually generate a assessment status under sections of which kind of data characteristics are there, lawful basis has been selected or not, individual rights are there or not, whether data minimization principles are there or not, which kind of data sharing and transfers are happening, along with data flows and architecture. So today, in the same series, we are going to talk about data protection impact assessment. Now, let me tell you that privacy impact assessment and what do you say, the DPIA, ये असल में interconnected elements हैं. How? PIA talks about privacy impacts, which has anything to do with Article 35. And we will only talk about the elements of privacy, PII, volume of data processing, and privacy related aspects of that same. DPIA, on the other hand, is protection impact assessment. Yes, privacy impact कर लिया, आपको गैप्स पता चल गए, आपको पता चल गया whether you have selected a rightful lawful basis or not. अगर आप लार्ज वॉल्यूम डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, अगर आप AI यूज़ में ले रहे हैं तो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, और अगर आपने प्रिवेसी नोटिस, कुकीज़ और अदर एलिमेंट्स को हैंडल नहीं किया है तो किस तरह के इम्पैक्ट्स आ सकते हैं. वाइल प्रोटेक्शन टॉक्स अबाउट वेदर डेटा वॉज प्रोटेक्टेड इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लो. जब आप डेटा की बात करते हैं तो डेटा हैज़ मल्टीपल कैटेगरीज विद इन योर सिस्टम. डेटा एट रेस्ट, डेटा इन यूज, डेटा in motion. At rest is data in your databases or data centers. In use is when you are editing the data, you are reading the data. And then motion, network data and RAM data. So these can be the categories of the data. In तीनों ही levels में when the data is flowing from these स्पेसिफिक लेवल्स क्या डेटा प्रोटेक्टेड है, दैट इज डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट. दिस इज अ लाइव वर्कशॉप. वी आर गोइंग टू व्यू सम tools, techniques, and again a generative AI generated tool to create a better assessment where you can understand कि आपका प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट, प्रोटेक्शन का इम्पैक्ट क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन पे. ओके, मूविंग अहेड. What is data protection impact assessment? Whether your data is protected
with required controls or not. It is a systematic process to identify and minimize the data related risk, data breach, data protection, data encryption, data pseudonymization, data anonymization. These controls are required to protect your data. Need to know basis, access based control. These are the controls which are required to protect your data. And the controls will always come from multiple levels. So again, data needs to be protected from the level of people, level of process, level of technology. So when we talk about people, awareness, training, need to know basis, process, flows, sovereignty, cross border data transfer, technology, encryption, synthetic data. These can be some controls of securing that data. So कब करना है DPIA? When there is a high risk processing happening. High risk processing happen कब होती है? जब आप हेल्थ डेटा को प्रोसेस करते हैं, जब आप PII को प्रोसेस करते हैं, जब आप ऐसे डेटा को प्रोसेस करने लगते हैं जिसका रेगुलेटरी रिस्क ऑलरेडी हाई मार्क्ड है. हाई रिस्क टू इंडिविजुअल हो सकता है क्या? जब आप उसकी वेल्थ को असेस कर रहे हैं, जब आप उसके सिबिल स्कोर को असेस कर रहे हैं, जब आप उसकी लोन लैंडिंग कैपेबिलिटी को असेस कर रहे हैं, या मे बी आप फार्मास्यूटिकल रिजल्ट्स निकाल रहे हैं. GDPR compliance, again this falls under Article 35 of GDPR and dual protection. So privacy impact assessment से आपने privacy को रिस्क को कैलकुलेट किया और उसको मिटिगेट करने की कोशिश की. इन डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट आपने पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी के लेवल पे डेटा प्रोटेक्शन कंट्रोल्स को चेक किया और रिस्क को असेस किया टू मिनिमाइज द रिस्क इन फ्यूचर. मूविंग अहेड. सो analyzing and identifying the risk of data protection before they become reality. So इसके लिए चाहिए क्या है? आप एक प्रोएक्टिव रिस्क आईडी बनाते हैं रिलेटेड टू डेटा प्रोटेक्शन, रेगुलेटरी कंप्लायंस की रिपोर्ट बनाते हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग करते हैं और आप अपने कस्टमर्स को बताते हैं, क्लाइंट्स को बताते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ है, योर डेटा इज सेफ विद अस. इट इज़ नॉट लाइक कि डेटा ब्रीच हो गया या किसी हैकर ने डेटा को मार्केट में बेच दिया, वल्नरेबिलिटी आ गई. एंड देन वी वर्क ऑन द रिस्क ट्रीटमेंट प्लान basis the proactive risk IDs we have generated so that we can minimize the data related risk. Okay, moving ahead. अगेन जैसा प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट में हमने किया था कि हम शुरुआत में क्या करते हैं, जीरो लेवल असेसमेंट करते हैं, थ्रेश होल्ड असेसमेंट करते हैं एंड देन फुल लेवल असेसमेंट करते हैं. इट इज़ लाइक कि जीरो लेवल असेसमेंट अंडरस्टैंडिंग सुपरफिशियल लेवल की प्राइवेसी इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा. अगर यहाँ स्कोर रिस्क का हाई आता है तो हम एक लेवल ऊपर चले जाते हैं, थ्रेश होल्ड असेसमेंट. हम और भी माइक्रो लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर से पता करते हैं कि वेदर द स्कोर ऑफ द रिस्क इज़ हाई और नॉट. अगर हाई है तो हम फुल स्कोप असेसमेंट करते हैं जिसमें हम बात करते हैं लॉफुल बेसिस की, इंडिविजुअल राइट्स की, रिकॉर्ड मैनेजमेंट की, डिस्ट्रक्शन की, रिटेंशन साइकिल्स की एंड सो मेनी अदर क्वेश्चंस. द सेम हैपन्स हियर बट the questionnaire will be different from the perspective of protection of the data in the three levels: in use, in motion, in rest. So हम चेक करते हैं जीरो लेवल असेसमेंट करके वेदर DPIA इज रिक्वायर्ड और नॉट. अगर हमारा DPIA रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब है कि प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट का रिस्क ऑलरेडी बहुत हाई है. साथ में हम ये भी देखते हैं कि कहीं हम क्रिटिकल डेटा एलिमेंट्स के साथ तो प्रोसेसिंग नहीं कर रहे. व्हाट आर क्रिटिकल डेटा एलिमेंट्स? हेल्थ डेटा, फाइनेंशियल डेटा, पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, ऐसा डेटा जिसका ब्रीच होने से आपको रेगुलेटरी पेनल्टी बहुत लंबी लग सकती है. दैट इज एक्चुअली व्हेन यू नीड टू डू अ फुल DPIA. डिसीजन का रेशनल क्या होगा?
क्यों डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट कर रहे हैं, किस तरह का रिस्क मैट्रिक्स यूज़ में लिया जाएगा, कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ प्रोटेक्शन क्या है, प्रोटेक्शन की रेमेडीज़ क्या हैं, और किस तरह से डिप्लॉय होंगी और कब तक रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है। दैट इज़ काइंड ऑफ अ साइकिल। सो इस साइकिल को मैं एक बार आपको बताता हूँ कि हाउ वी डू इट। सो द साइकिल इज ऑलवेज we do a self assessment that can be any kind of assessment. RCSA basis, privacy control, infosec controls, protection controls, or XYZ standard controls. After that we calculate risk and we call them risk levels, which can be low to high. Then we move ahead to risk treatment plan. What is this? This can be a documentation. This can be a system. IBM Open Pages is an example of this. Yes, RSA Archer can also be used. OneTrust can also be used for this. This will actually calculate कि मान लीजिए कि आपका कोई रिस्क बहुत हाई था और एक कंट्रोल डेफिनेशन बना कि इन कंट्रोल्स को डिप्लॉय करने से रिस्क के लेवल लो चले जाएंगे। सो माइलस्टोन सेट हुआ और हमने बताया कि विद इन 3 मंथ्स हम रिस्क को हाई से मीडियम पे ला सकते हैं बाय डिप्लॉइंग दिस कंट्रोल। अ कंट्रोल इज अ रिमीडिएशन मेथोडोलॉजी लाइक personal data can be breached. To safeguard that, you can encrypt it, you can pseudonymize it, you can anonymize it, you can create need to know basis. Again, access control protocols को डाल सकते हैं आप. So, स्क्रीनिंग असेसमेंट करेंगे, ICO गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, रिस्क आईडीज क्रिएट करेंगे डेटा प्रोटेक्शन की, और अंत में लीडर्स से, प्रोडक्ट ओनर से, प्रोजेक्ट मैनेजर से कंसल्टेशन और साइन ऑफ कराएंगे किस तरह से DPIA को हैंडल किया जाने वाला है इन फ्यूचर। सो एक मैंने आपको जेनरिक वे बता दिया हाउ टू डू दिस। मूविंग अहेड, DPIA करना है या नहीं करना है, थ्रेशोल्ड असेसमेंट काइंड ऑफ सिनारियो। अगर आप लार्ज स्केल प्रोसेसिंग कर रहे हैं डेटा की तो करना है, सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो करना है, स्पेशल कैटेगरी ऑफ डेटा, माइनर्स का डेटा यूज में ले रहे हैं तो करना है। प्रोसेसिंग का स्केल, वॉल्यूम, अब आप 10 लाख इंडिविजुअल से ज़्यादा का डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, या डेटा सब्जेक्ट्स आपके बहुत ज़्यादा हैं, या आपकी फ्रीक्वेंसी डेली है। ऐसा कहाँ होता है मैं आपको कैसे बताऊं? इन सिनारियो वेयर देर आर फ्लीट्स ऑफ कार्स सपोर्टिंग कस्टमर्स ऑन डेली बेसिस and dynamic pricing is an element. Maybe you are doing it on every 3 hours. आप कस्टमर की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप कस्टमर के डेली आने जाने के स्टाइल को डिफाइन कर रहे हैं, आप डायनेमिक प्राइसिंग बना रहे हैं, आप सर्ज प्राइजेस बना रहे हैं, नाइट चार्जेस डिफरेंट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम पर्सनल का जो टाइमलाइन है वो हो सकता है पर्सनल डेटा हो और वो आप प्रोसेस कर रहे हैं। सेंसिटिविटी, स्पेशल कैटेगरी डेटा यूज़ में ले रहे हैं, क्रिमिनल कन्विक्शंस को यूज़ में ले रहे हैं, प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, लोन प्रोफाइलिंग, क्रेडिट प्रोफाइलिंग, सिबिल प्रोफाइलिंग, हेल्थ प्रोफाइलिंग, एंड यू आर यूजिंग इट फॉर द डिसीजन मेकिंग एज वेल। दैट कैन बी अ प्रॉब्लमेटिक एरिया, DPIA करना पड़ेगा। क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। सो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के relations are not so good. In that scenario, Indian data will not go to Pakistan, Pakistan data will not go to India. Korea, Japan, China, Hong Kong, there are scenarios where international transfer may affect data sovereignty. इसलिए डेटा को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। सो गाइडलाइंस आप ICO की यूज़ में ले सकते हैं और अपने डिसीजन रेशनल को एक डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं कि वाई वी आर डूइंग दिस डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट। मूविंग अहेड, जब भी आप DPIA करें सो स्टार्ट विद द प्रोसेस।
आप एक डॉक्यूमेंटेशन बनाएं जिसमें लिखें कि प्रोसेस फ्लो क्या है, प्रोसेस का कंटेक्स्ट क्या है, किस तरह की सर्विस है, विच काइंड ऑफ डेटा इन्वेंट्री वी आर यूजिंग. Data inventory is like business data elements to be identified, discovered, and written onto that documentation. Why we are using this data, whether a lawful basis has been taken or not. It is a legal obligation, regulatory obligation, consent-based processing or what, and do the risk assessment. And also, along with that, write the risk mitigation strategies. कि जो भी हमको रिस्क मिलेंगे उनको हम किस तरह से मिटिगेट करने वाले हैं. ऑल्दो वी हैव अ इंटरेक्टिव टूल टुडे, सो वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ऑन दैट ऑल्सो. मूविंग अहेड, कंसल्टेशन प्रोसेस कैसे काम करती है. डेटा प्रोटेक्शन का आपने डोजियर बना लिया, आपने एक साइन ऑफ करवा लिया अपने लीडर से, और इस पूरे डॉक्यूमेंटेशन को, असेसमेंट को आपने अपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी और डेटा एनालिटिक्स टीम को दिया. कंसल्टिंग लिया, रिस्क रिमीडिएशन प्लान बनाया, रिकमेंडेशंस लिए, कंप्लायंस इंप्रूवमेंट करने के प्लान बनाए, मिटिगेशन का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उसके माइलस्टोन जनरेट किए विद द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम. एंड फॉर द ईयर आप किस तरह से साइकिल चलाएंगे, क्वार्टरली साइकिल, 6 मंथली साइकिल, ईयरली साइकिल. इसके बाद आप साइन ऑफ लेकर के गो लाइव जा सकते हैं. एंड डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट का रिस्क रिमीडिएशन पैरेलली चलता रहेगा. ओके, so what are the key principles for data protection impact assessment? Privacy notice has been updated or not? Why we are using the data? What kind of data sets are being used? How we are using that? By when we will be destructing that? What is the retention period? This needs to be there in your privacy notice. Transparent communication. When you are processing the data, a mail needs to go to the individual that your data is being processed under this lawful basis for this purpose. Subjects right information. Every lawful basis has different data subject rights. आपको कुछ शब्द सुनने को मिलेंगे. There is data subject rights, that is DSR, and second is data subject access rights, DSAR. So DSR is about कि lawful basis के बेस पे किस तरह के individual rights are there for any individual. एंड अगर उसको डेटा का एक्सेस का राइट है तो दैट इज अ DSAR. हाउ मच डेटा विच इज प्रोसेस्ड बाय द कंपनी कैन बी एक्सेस्ड बाय दैट इंडिविजुअल. एक्यूरेसी. नाउ हेयर कम्स डेटा क्वालिटी कंट्रोल्स. डेटा क्वालिटी इज नथिंग बट whether you are using a good quality of data or not. मिसिंग एलिमेंट्स तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, एक जीरो बढ़ या घट तो नहीं गया है, काइंड ऑफ सिनारियो. कंटिन्यूस एक्सेस. इंडिविजुअल्स को अलाउ करना चाहिए ताकि वो चेक कर सकें वेदर देयर डेटा विद द कंपनी इज एक्यूरेट फ्रॉम देयर परस्पेक्टिव और नॉट. एंड रेगुलर रिव्यूज. So these are the purpose and transparency as well as accuracy principles when you are performing data protection impact assessment. Then principle number 3 is data minimization. कम से कम डेटा यूज में लीजिए. अगर आपको लगता है कि 100 कॉलम्स डेटा लेना है तो ट्राई टू मिनिमाइज दैट टू रिक्वायर्ड 10 to 15 कॉलम्स ऑफ डेटा. पर्पस लिमिटेशन. डिफाइन कीजिए कि इस डेटा सेट का यूज़ मैं इसी पर्पस के लिए करूँगा, क्योंकि आपको प्राइवेसी नोटिस में ऑलरेडी उस चीज़ को पब्लिश करना होगा. रिव्यू कीजिए आपके प्रोसेसिंग सिनारियोज़ को और चेक कीजिए कि कहीं कोई अपनी ऑथराइजेशन या अथॉरिटी से ऊपर डेटा प्रोसेसिंग तो नहीं कर रहा है. प्रिंसिपल 4 इज रिटेंशन. व्हाट आर योर रिटेंशन शेड्यूल्स. कंसेंट अगर आपका लॉफुल बेसिस है तो आप डेटा को कितने दिन के लिए रिटेन करेंगे, कितने दिन में डिलीट करेंगे. फिजिकल डेटा वर्सेस डिजिटल डेटा के लिए डिस्ट्रक्शन पॉलिसीज़ क्या हैं. आपको रिकॉर्ड रिटेंशन का एक डॉक्यूमेंटेशन बना कर के रखना पड़ेगा जिसको आप बोलेंगे रिकॉर्ड मैनेजमेंट बाइबल, विच विल टॉक अबाउट एवरी कैटेगरी ऑफ द डेटा विच इज़ बीइंग यूज्ड along with what is the retention period, what is the destruction period, who is the data steward, who is the owner of the data, and who is the risk owner of that data. Then legal compliance, but obvious आपको हर कंट्री के लीगल कंप्लायंस के साथ
अपने रिटेंशन साइकिल्स को मैप और मैनेज करना होगा। डिलीशन अगेन ऑटोमेटेड डिलीशन होगा या मैनुअल डिलीशन होगा। रिकॉर्ड डिस्ट्रक्शन अगर फिजिकल डेटा है तो किस तरह से किया जाएगा। सिक्योर डिस्पोजल वही है कि पेपर को श्रेड करना है, डेटा या तो जला देना है। हार्ड डिस्क होने की कंडीशन में लो लेवल फॉर्मेट करना है, एक बार नहीं 2-3 बार करना है ताकि डेटा रिट्रीव ना हो सके। लैपटॉप का लाइफ साइकिल खत्म हो जाने के बाद लैपटॉप में छेद करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन कि ड्रिल लेकर के उसको छेद कर दिया, नो। हार्ड ड्राइव का डिस्ट्रक्शन होना चाहिए एट द डिस्क लेवल, जो 0 लेवल से ही फॉर्मेट होने पर हो सकता है। एंड वेरीफाई कीजिए कि हाँ डेटा डिस्ट्रॉय हो गया। सो दीज वर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट। Why you are doing that? Cause you want to safeguard the integrity and confidentiality of the data that you have collected from any individual. आप कैसे कर सकते हैं ये? सिक्योर स्टोरेज से कर सकते हैं। आपकी डेटा होस्टिंग सिक्योर लोकेशंस पे होनी चाहिए और आपके पास बिजनेस कंटिन्यूटी के प्लान्स होने चाहिए, बैकअप्स होने चाहिए, एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स डिप्लॉय होने चाहिए, अथॉरिटी बेस्ड, ऑथराइजेशन बेस्ड सिंगल साइन ऑन सिनारियोज होने चाहिए और डेटा वही आदमी देख सके जिसको अथॉरिटी है उस डेटा देखने की। सिक्योरिटी असेसमेंट्स भी किए जाने चाहिए। तो बट ऑब्वियस ISO 27001 इंक्रिप्शन को कवर करता है। सो दीज काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कैन बी यूज्ड एज एन अपेंडिक्स। और स्टाफ को ट्रेन करना है व्हाट यू आर अलाउड टू डू, व्हाट यू आर नॉट अलाउड टू डू। अकाउंटेबिलिटी सेट करना है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, हु इज़ अकाउंटेबल, हु इज़ कंसल्टेड एंड हु इज़ इन्फॉर्म्ड। आर्टिकल 30 के रिकॉर्ड्स रखने हैं। आर्टिकल 30 बोलता है कि प्रोसेसिंग के रिकॉर्ड्स रखिए। आपने स्कोप डिफाइन कर दिया, इस डेटा से मैं सिविल स्कोर एनालाइज करूंगा, इस डेटा से मैं लोन एनालाइज करूंगा, इस डेटा से मैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को एनालाइज करूंगा। एंड डॉक्यूमेंटेशन बना के रखिए, हर चीज़ का क्लियर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए व्हाई यू आर प्रोसेसिंग दैट डेटा। प्रोसेसर के कॉन्ट्रैक्ट्स भी होने चाहिए आपके पास। सो मैंने आपको पहले ही बताया था, 1 पर्सन इज कलेक्टिंग द डेटा, ही इज़ द कंट्रोलर, 1 पर्सन इज प्रोसेसिंग द डेटा, ही इज़ द प्रोसेसर। जब डेटा इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम दिस कंट्रोलर टू दैट प्रोसेसर, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होना जरूरी है विच मे कंटेन नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स एंड डेटा प्रोटेक्शन सिनारियोज कि ये कंट्रोल्स होने चाहिए। इट इज़ अ बिग डॉक्यूमेंटेशन, इसको हम किसी वर्कशॉप में ले सकते हैं और उसका डॉक्यूमेंटेशन आपको अपने पास हमेशा रखना चाहिए। कोर रिक्वायरमेंट्स इंडिविजुअल राइट्स को संभालने के लिए हैं, वेदर द एक्सेस मैनेजमेंट इज देयर और नॉट, रिस्ट्रिक्शन ऑफ unidentified processing is there or not, portability of the data is available or not, whether an individual can rectify their data or not, if he asks that delete my data, whether you have erasure protocols available or not, and whether he can object on processing of his data or not. So these are the individual rights that you need to see. रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क, मैंने आपको जैसा पहले बताया था कि आप आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को, आप लाइकलीहुड और इम्पैक्ट को कैलकुलेट करते हैं, आप 3x3 या 5x5 ग्रेड्स बनाते हैं, रिस्क को रेटिंग देते हैं, लाइकलीहुड इंटू इम्पैक्ट इक्वल टू योर रिस्क स्कोर दैट कैन बी लो, मीडियम एंड हाई। और आप डिफाइन करते हैं कि अपर लेयर ऑफ मीडियम टू हाई को हम क्रिटिकल रिस्क मानेंगे। सो मेरे जो मैंने इंटरेक्टिव टूल बनाया है उसका कैलकुलेशन सिनारियो इज लिमिटेड टू लो रिस्क इज इफ योर स्कोर असेसमेंट स्कोर इज कमिंग टू 1 to 8, मीडियम रिस्क इज 9 to 12, हाई रिस्क इज 13 to 25। दिस इज जस्ट अ सैम्पल। अलग अलग कंटेक्चुअलाइजेशन में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में दीज क्वेश्चनायर्स, इवन द रिस्क रेटिंग्स में वरी। ओके, सो कॉमन रिस्क मैंने उठाए हैं। डेटा ट्रांसफ़र का रिस्क, जब डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है और डेटा इन मोशन है, सो वेदर नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, फायरवॉल्स और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन एट नेटवर्क हैं या नहीं है, एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, वेदर ऑथराइज्ड पर्सन इज ओनली लुकिंग द डेटा और नॉट। डेटा लॉस, कई बार डेटा लॉस हो सकता है बाय पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, कई बार डेटा लॉस हो सकता है ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ पावर, इसको भी हम रिस्क ही मानते हैं। रिटेंशन इश्यूज़,
आप भूल गए कि आपका कहीं पर फिजिकल डेटा रखा हुआ है पिछले 10 साल से, दैट इज़ अ रिटेंशन इश्यू। साइबर ब्रीचेस, रैंसमवेयर अटैक हो गया, आपका थ्रेट सरफेस बहुत ज़्यादा ओपन था, डेटा ब्रीच हो गया। कंप्लायंस फेलियर, आप कंप्लायंस रिपोर्टिंग ही नहीं कर पाए, दैट इज़ अ कॉमन रिस्क इन दीज सिनारियोज। ओके, moving ahead, you need to create a mitigation strategy documentation or onto a system. So in traditional ways, a risk treatment plan is developed. आप ट्रांसफर असेसमेंट करते हैं, आप रोल बेस्ड एक्सेस असेसमेंट करते हैं, आप सिक्योर प्रोटोकॉल असेसमेंट करते हैं, आप चेक करते हैं, यू क्रिएट अ डेटा इन्वेंट्री, यू क्रिएट अ कॉलम, हाउ मच डेटा हैज़ बीन डिस्कवर्ड, हाउ मच हैज़ टू बी रिटेन्ड, हाउ मच हैज़ टू बी डिस्ट्रक्टेड। सप्लायर असेसमेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड थर्ड पार्टी वेंडर असेसमेंट, थर्ड पार्टी रिस्क असेसमेंट, TPRA। एंड रेगुलर ऑडिट्स करते हैं, PDCA, प्लान डू चेक एक्ट। तो जब भी मैं मिटिगेशंस की बातें कर रहा हूँ तो वी नीड टू रिमेंबर दैट देयर इज़ अ साइकिल इन ISO 27001, दैट इज़ PDCA। आप हमेशा प्लान डू चेक एक्ट करते रहते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, क्वार्टरली, 6 मंथली, ईयरली, और ऑन गोइंग रिव्यू करते रहेंगे तो एक दिन आपका सिस्टम ऑन टू अ ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, या कहा जाए तो मेच्योरिटी पर आ जाएगा। ओके, सो द की टेक अवेज फॉर दिस स्पेसिफिक प्रेजेंटेशंस वर, इट इज़ एसेंशियल if you have personal data to run data protection impact assessment. You can use 3-step process, that is assess, analyze, mitigate. की प्रिंसिपल्स को आप डिप्लॉय कर सकते हैं, जो मैंने की प्रिंसिपल्स बताए। डेटा मिनिमाइज कीजिए, लॉफुल बेसिस कीजिए, राइट्स को एनालाइज कीजिए, डेटा रिटेंशन साइकिल चेक कीजिए और क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर को चेक कीजिए। रोबस्ट मिटिगेशन प्रोटोकॉल with union of everyone. So why I am saying union? One protocol is InfoSec, one protocol is TPRA, one protocol is data center risk assessment, one protocol is BCP, one protocol is privacy. बट आपको एक बात बता दूं, इन सब का कहीं ना कहीं यूनियन होता है। देर आर सम एलिमेंट्स विच आर यूनिफाइड इन एवरी डोमेन। इन्फोसेक में जो इंक्रिप्शन कंट्रोल है वो प्रिवेसी में है, प्रिवेसी में जो PII कंट्रोल है वो TPRA में है, क्योंकि आपका कंट्रोलर प्रोसेसर रिलेशन है। एंड एवरी यूनियन विल रिक्वायर अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क मिटिगेशन प्रोटोकॉल। ओके, सो दिस वाज आवर प्रेजेंटेशन ऑन DPIA. Now coming back to the interactive tool, this interactive DPIA tool has been generated using some normal protocols which will be uploaded onto my website. So मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट्स लिख करके सबसे पहले डैशबोर्ड आपको बना करके दिखाया है। सो लेट्स से कि वर्कडे का ERP इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, और ये दिस इज़ अ 0 लेवल क्वेश्चन, क्योंकि अभी इसमें मैंने रिस्क असेस किए नहीं हैं। सो डैशबोर्ड के बाद आप गवर्नेंस में जाते हैं, गवर्नेंस में आप प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। सो लेट्स से प्रोजेक्ट मैनेजर इज अमित, दिस इज पीपल सर्विसेज, लास्ट रिव्यू वाज today's date, last review was, let's say it was 2024. ओके, एंड देन मैंने लिखा कि क्या कंटेक्स्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट वी आर इंटीग्रेटिंग वर्कडे ERP solution for the people services, and our target is this, that the contextuality that I told you. Okay, then I went to this is compliance audit section. The questions are, will you need to update your privacy notice? Yes, I need to. If not updating privacy notice, how will you communicate processing info to subject? Yes, we will do that. Okay. If consent is a lawful basis, are you maintaining record of consent? अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो रिस्क लो है, लेकिन अगर मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो रिस्क हाई है।
If legitimate interest is lawful basis, have you completed a legitimate interest assessment? LIA बोलते हैं इसको. इसके लिए मेरे को एक अलग सेशन बनाना पड़ेगा. So we will generate one more workshop on this. No, हमने नहीं किया. तो जहाँ जहाँ आप रेड देख रहे हैं, it is actually creating risk levels. और वो risk levels मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे. They are actually in our this slide. This is the risk calculation slide. Low risk, medium risk, high risk. इसी को हमने बोल के रखा है कि this is actually a assessment or a risk assessment framework for DPIA. Okay. Data accuracy. Whether you are maintaining quality? No, you are not maintaining. Whether duration of processing is maintained? No. Whether you are verifying the data subject? No. तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रैंडम जवाब, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपने देखी वही क्वेश्चंस हैं यहाँ पर. इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी रिलेटेड क्वेश्चन, रोल बेस्ड एक्सेस क्वेश्चंस, साइबर सिक्योरिटी टीम्स इन्वॉल्वमेंट, पॉलिसीज, ट्रेनिंग्स. सो आई एम ट्राइंग टू गिव देम रैंडम आंसर्स, एंड व्हेन यू complete this questionnaire, you will get your risk levels. That still the risk levels are okay. Still the risk levels are low. But what if मैं यहाँ पर नए रिस्क को सजेस्ट करूँ? तो मैंने क्या किया है, एक जनरेटिव प्लगइन को इंस्टॉल किया है इसमें, जिसमें जेमिनाई ने सजेस्ट रिस्क सिनारियो खुद ही डाल दिया है. दैट मीन्स आपको कुछ नहीं करना है. आपने जो क्वेश्चनायर पहले भरा है उसके बेसिस पे ये ऑटोमेटिकली आपको रिस्क सजेस्ट कर देगा. हैव यू सीन इट? प्रीवियसली इट वाज शोइंग लो रिस्क, बट देन इट कैलकुलेटेड एंड टू एंड इनक्रिप्शन डालिए, क्योंकि इनक्रिप्शन नहीं था. रेजिडुअल लेवल इज हाई. फेलियर टू करेक्टली कॉन्फ़िगर रोल बेस्ड एक्सेस. वाई इट इज़ कमिंग हेयर? क्योंकि मैंने बोला कि मैंने रोल बेस्ड एक्सेस नहीं दिया है लोगों को. सो लेट मी शो यू दैट क्वेश्चन हेयर. क्वेश्चन नंबर 3.12. आर देयर एप्रोप्रिएट एक्सेस कंट्रोल्स? RBAC नो. सो रिस्क रजिस्टर मेरा ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया. एंड मैं जैसे ही आगे जाऊंगा, इट कैन एक्चुअली गिव यू सपोर्ट ऑन टू AI कंप्लायंस, AI बेस्ड चैटबॉट बेस्ड सर्विसेज. दीज आर फ्रॉम जेमिनाई ओनली. मैं डेटा को एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ. आई कैन जस्ट क्लिक ऑन एक्सपोर्ट डेटा. मैंने जो भी क्वेश्चनायर भरा था दैट विल बी एक्सपोर्टेड इन एन एक्सेल शीट. ये सारा वाइब कोडेड टूल है. इसके कोड्स बहुत ही सिंपलर वे में लिखे गए हैं. लेट मी शो यू द कोड्स. Here is the code. And this code was generated in just 20 minutes time. It is easily deployable on Google Clouds, and you can update it as per the consulting inputs you are receiving from your leaders, project managers, or team collaborators. So this was today's session on data protection impact assessment, how to perform it. Next session we will try to cover legitimate interest assessment, as well as we are coming up with some new generative AI tools to perform information security and privacy risk and improve our GRC gesture. Great, thanks for joining.